ਇਹ ਵੀ ਠੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਵਾਇਆ ਵੀ ਠੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਆਕੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਆ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂ अमल मान लिया उस मालिक से इस तरह की सियासत कर यही कर देने इस तरह की सियासत अल्लाह तो कह रहे हैं इस तरह ही जिंदाबाद ओ बस होए सबर कर भाई नाथ वलीमे ते आए हैं चाचा सबर कर बंदा फोत होया सबर कर चलो छो ना की लोगों के थ्रू मैसेजेस जो है सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारा जलसा कराया पीटीआई छोड़ दो दो बंदे जो थे जिनको उठाए एक ने लिख के दे दिए 2 दिन के बाद उसको छोड़ दिए ये पार्टी की इधर से सुबह की पता नहीं बेचारे फौत हो गए थे तो आज रात को तक उन्होंने देखे लोगों को पता नहीं चलेगा रात ये तो मुजम्मल साहब लेने आए थे तो मुजम्मल साहब आए वो पीटीआई की जो वकील है वो लेने के लिए आए तो उनको डेड बॉडी उनके हवाले कर कुर्सियां बीबियां दे दी वो तो और ले आओ कुर्सी इधर आओ थोड़ा पीछे हो जाओ यार कदर पीछे हो जाओ जो भी थोड़ा कोई इंसाफ बच गया वो लेके जाएंगे लीगल टीम सारे बह के उसका कॉन्सिक्वेंस सारे देख के अफजाल अपना कादी साहब नाल थोड़ा करके ठीक है ਅਸੀਂ इंशाल्लाह ताला हर लिहाज नाल मेरा एक मिनट जी हर लिहाज नाल इस जुल्म दा बदला जरूर लवांगे और ਅਸੀਂ आखिरी हद तक इंसाफ लैके देने की हर तरह की कोशिश करांगे अगर साडा कोई मुतालबा नहीं मनते किसी गल इलाज करना तो काम लाते हैं साढ़े जो मजमून है FIR के मुताबिक नहीं काम करते असं उठा नहीं मनते असं इतने बैठे रहेंगे दूसरा साढ़ा है कि FIR ला देंगे साढ़े बंदे इंशाअल्लाह ताला कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और पूरी तरह अगर एक तो जान ले साडे भी लोग है साडे लगा छड़न पैर यही बचना ना पीछे प्रोटोकॉल दियो तुसी इन्हां सारे डीपीओ चौधरी साहब आ रहे हैं तो DPO साहब आ रहे हैं जरा डीपीओ साहब ने तो लिया डीपीओ साहब सल्यूट ਤੁਹਾਡੀ यजीदियत ने सल्यूट जा मेरे आराम नाल गल करिए आराम करिए ते आराम तो आराम नाल गल करिए ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सारे गोली मारो सारे गोली मारो इंसाफ दे नहीं सारे गोली मार छोड़ो बंदा इतने टारगेट करके मारिया जे बस यार जा यार आराम नाल मैं ये कह रहा हूँ कि आराम से बात करें एक या दो बंदा बाकी बात भाई एक मिनट सबर यार एक मिनट अगर आप करना चाहते हो तो आप करें याद करो बस भाई एक मिनट करना चाहते हैं तो आप आगे आ जाए सबर करो मुझे बस सुते उठाया करो ओपन जल से हो रहा है मेरा कादरी अफजाल अहमद नाम है मेरे बालों से बेटा हूँ
ਜਿਨ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰਕ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਉੱਤੇ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਾਊਂਡ ਰੱਖ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਲੈਕਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਢੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ, 1200 ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਾ ਸਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਜਲਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ 8 ਮਰਲੇ ਦਾ 10 ਜ਼ਿਆਦਾ 100 ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਬੀਬੀ ਬੱਸ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 40-50 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਤਸ਼ਹੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ, 40 ਤੋਂ 50 ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਡੀ ਗੁਆਡੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਬੱਸ ਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਬੀਬੀ ਬੱਸ ਮਾਂ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 2 ਡਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਬਿਗੋ ਡਾਲਾ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਸਾਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਲਿਆਂ ਚਾਹੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਬਣ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹਲਫ ਚੁੱਕੇ ਆ, बस करो बात सुन ਉਹਨਾਂ ਹਲਫ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ बस करो अब बात ਆਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। कर भाई अगे अखा च पैंदा बच्चे वाली गल कर लाइटां बंद कर दो ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਾਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਲਸਾ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਲੜਕੇ ਖਿਲਾਰੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ PTI ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਬਾਹਰ 2 ਡਾਲੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਰ ਬੀਬੀ ਬਾਸਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨੂੰ ਡਾਲੇ ਹੈਗਾ ਪਿਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 75-80 ਸਾਲ उम्र है, सफेद दाढ़ी है, दरवेश आदमी ने। उन्हें पूछा है कि मेरा कसूर दसो, ਪੁਆਇੰਟ ਆਂਦੇ ਨਵਾਜ਼ੀ मेरा कसूर की है। उन्हें कहा जी तुसी जलसा करवाया अपने घर दे विच PTI दा, तुहाडा कसूर है। उन्हें कहा चलो जे अगर ये कसूर है तो वो ते असीं कर बैठे हैं, वो अगे लगे ने, आ गए इत्थे, वो आ गए ने, कोई दरखास्त नहीं, कोई FIR नहीं, कोई दरखास्त FIR थाने दे विच नहीं। असीं सर हर सिफारिश सर मसला नहीं, पता की गल देखो ना, मैं एक गल करांगा, नहीं मैं एक मिनट, मैं तुहाडी इस गल नाल इत्तेफाक नहीं करांगा। ओदी वजह जितना मेरा नुकसान होया ना उतना DPO साहब दा होया, ना इन्हां दी टीम दा होया। DPO ਸਾਹਿਬ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਵਰਤੀ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ मैं ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਯਾਰ यार इसको साइड पे कर लो
साइड पे आपको एहतराम है या नहीं है किसी को? ओए यार मैं अगे एक दफा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ करे बेटा आ जाओ बाहर आके जिससे बात करनी है ना थाने से बाहर आके थाने के गेट से बाहर आके थाने ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ कोई बंदा बाहर ना जाए, बाहर ना जाओ। ਬਾਹਰ ਜਾਵੀਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ बाहर ना जाए, अब पब्लिक से वापस आओ, कोई बंदा बाहर ना जाए, ਥਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਓ ਸਾਰੇ बाहर ना जाओ, कोई बंदा बाहर ना जाए। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਚੱਲਾ ਸੀ ਡੀਪੀਓ गल करी दिया कि करे अस्सलाम वालेकुम की हाल है थाने यार की सट्टी यार तेरे सुन मेरा जुर्म या मेरे वालिद साहब का जुर्म किसी तस्लीम कर दिया किसी जुर्म किया नहीं किया तो फिर सारे इस पुलिस ने क्यों उठा के जाना मेरे वालिद साहब सर मैं गल तो अंदाज दी है कि मेरा जुर्म है कि मैं घर में पीटीए तो जलसा करवाया अच्छा फिर ये लैके आए ने असा हर सिफारिश करवाई SHO साहब ने सिफारिश करवाई है तुसी DPO साहब हो तुहाडे कोल भी कालां होणीਆਂ ने मेरे कोल हो कि मैं रूबरू मेरे मतलब जिन्हां बंदियां ने तुहानू कालां कीतियां ने कि बुजुर्ग दे दिओ तुसी भी टाइम मंगदे रहे सर मेरे बुजुर्ग दा मेरे वालिद साहब दा की होई जे अगर तुहाडी नजर च अगर असी जुर्म कीता या मेरे लाइट बंद करो यार बंद कर ला बाकी जो मर्जी अगर मेरे वालिद साहब ने कोई जुर्म किया है कोई चोरी की है डकैती की है कोई किसी किस्म का जुर्म किया है ठीक है सर ओदी ते सजा होनी चाहिए अगर कोई जुर्म ही नहीं अगर कोई बंदा जुर्म करता है ओदी दरखास्त और तैयार होंदी है 6 दिन 7 दिन हो गए मतलब 28 तरीक का गिरफ्तार किया कोई FIR नहीं कोई दरखास्त नहीं बगैर जुर्म तो हवालात दे विच थाने दे विच मेरा वालिद सर क्या है आइन और कानून दे मुताबिक है ठीक है गलत सर फिर सन अगर तुसी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते कौन देगा इंडिया की फौज या देंगे आपको क्यों नहीं किस देखता तरह हूं देंगे मेरे वालिद साहब की जान चली गई है मैं उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ की करांगा जेड़ा तुसी उन्होंने दोगे जान का तो इंसान जी मैं जानना कि अल्लाह ताला दे कब्जा कुदरत है जिंदगी और मौत ओदे हाथ में है ਇਹਦੇ ਚ ਜੋ ज्यादती हुई है मैं अभी देखता हूँ मैं इसीलिए आपका क्या ख्याल है नॉर्मली कोई DPO इस तरह नहीं होता कि फौरन सुन के आ जाए मैं देखता हूँ इसमें क्या ज्यादती है जिसने ज्यादती इसीलिए मैं तो सर आपको भी इस जाति का मुर्तकब समझता हूँ इसलिए कि ऐसे नहीं होता जिम्मेदार हम फिर सारे ही होते हैं ऊपर तक जब खलीफा धूम कहते हैं कि बच्चा जो है वो मर जाए तो कभी होता है लेकिन बात ये है कि कोई टेंशन नहीं सीट के मुताबिक जरूर जिम्मेदार वो तो फिर जो हमारे सरकार ने कह दिया ऐसे ही है कि जिम्मेदार सारे ही होते हैं लेकिन नीचे जितने जो जिस तरह यार कौन क्यों है बैठे हुआ है ना बदमाश ने सरे बंदे मारी सर तुहानू सिफारिशां नहीं गईयां मैं देखता हूँ मुझे सिफारिशें आप इस तरह नहीं कह सकते मुझे सिफारिशें या मेरा फोन तो सारी दिहाड़ी चलता रहता है और एक नहीं हजारों केस होते हैं इस तरह मैं देख लेता हूँ पुराने पाक का हालत दिखाया कि मैं जी जी ऐसे ही है बिल्कुल सर मैंने तुहाडे गुजारिश की है हुक्म तो अलावा पुलिस साहब बिल्कुल हरकत नहीं कर मैंने गुजारिश की है ना कि मैं सारी चीजें देख लेता हूँ इसको बैठ के देखते हैं मैं आया ही इसीलिए ये नहीं है कि सिर्फ आपसे बात करके जाने के लिए आया हूँ मैं सारी इंक्वायरी इसको करता हूँ और बाकायदा इसमें कमेटी बना के सारे एक चीजें देखता हूँ अब आप मुझे काम करने का मौका देंगे तो मैं जरूर करूँगा जितनी देर आप बात करते हैं मैं आपके साथ खड़ा हूँ और इस जुल्म ज़्यादती के साथ आपका साथ तो बेटा लाइटां तो मैं तो कितनी बारी कह चुका हूं यार बंद कर ले ठीक होंदी है
खड़ा हूं। अगर सर जो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ